Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to International Financial Management course. Today we are going to start up with this new course. I am Dr. Amara Noreen, Assistant Professor at CompStats Institute of Information Technology in the Department of Management Sciences. I am your teacher for this course and we will be doing International Financial Management together. आपने इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा हुआ है एंड यू नो द बेसिक्स. दिस इज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन कोर्सेज दैट वी टीच टू MBAs एंड BBA स्टूडेंट्स. तो हम इस कोर्स को पढ़ेंगे और हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करेंगे. वी विल बी डूइंग एंड कंडक्टिंग एक्सरसाइजेज. थोड़ा सा अपने बारे में मैं आपको बता दूं. मैंने 1998 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से MBA किया and after that since then I am in the teaching field. I have almost 15 years of teaching experience in different universities of Rawalpindi and Islamabad. Starting with the Preston University, worked over there for 2 years. Then I moved to Barani Institute of Information Technology. Then after that I joined Arid Agriculture University Rawalpindi and I have taught many courses. Mainly finance is my specialization and I have been teaching the finance courses mostly. उसके अलावा I have conducted various workshops at Allama Iqbal Open University and doing certain courses. उनको भी मैंने teach किया हुआ. And also I have the experience at Bahariya University Islamabad. उनके bachelor's और master's level की classes मैं पढ़ाती रही हूँ. And after that I joined in 2007 I joined CompStats Institute of Information Technology. पिछले 6-7 साल से I am assistant professor over there. I completed my PhD 3 years back in 2010 and my area of research was impact of microfinance on poverty. As far as my academic distinctions are concerned, I have many distinctions to my credit. Alhamdulillah, I have secured first position in BSc and I was a gold medalist. Topped Karachi University, secured third position in Peshawar region in matriculation exam, and I secured highest CGPA in PhD in 2010 and got the merit certificate from the institute. My area जो research का है that is related with the microfinance, लेकिन जो मेरा teaching area है that is finance और मुझे finance पढ़ाना बहुत पसंद है and I have been teaching finance for the last especially सिर्फ जो उसके specialization वाले courses हैं at least for the last 6 to 7 years I have been teaching only finance courses. उसके अलावा भी बाकी courses का भी थोड़ा सा in touch है. अच्छा, हम इस कोर्स के बारे में बात करेंगे एंड वी विल बी डूइंग दिस इंटरेस्टिंग कोर्स एंड यू विल फाइंड दिस कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से. आपने इंटरनेशनल बिजनेस का एक कोर्स पढ़ा होगा. Basically, financial management is the course which is the mixture of international business and financial management. So, what is our plan? What we are going to do? मैं थोड़े बहुत आपको कंटेंट्स भी बताऊंगी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स टुडे. आपके लिए इस कोर्स के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं. वो ये है कि डोमेस्टिक बिजनेस को ऑपरेट करना इज कंपैरेटिवली सिंपल एज कम्पेयर टू इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में काम कर रहा है. जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो जो भी बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर काम कर रहा होता है विच इज़ बेसिकली डूइंग द बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट सब्सिडरीज इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं. और इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो उस लिहाज से कॉम्प्लेक्स है और वो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, उसको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई वी से कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर्स. अच्छा, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या ज़रूरत है? जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ ली तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ें? उसकी बहुत सारी रीजंस हैं. क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो आपका exposure as far as the
competition is concerned, interest rates are concerned, inflation rate is concerned, exchange rate is concerned, आपकी जो environment है वो complicated होती जाती है. मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे complicated होती जाती है. Main topics जो हम इसमें पढ़ेंगे वो आपको नजर आएंगे. We will be talking about the international flow of funds. We will be talking about the international money market. We will be talking about the international banking. We will be talking about currency derivatives. We will be talking about capital budgeting. International perspective के हवाले से क्या हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की बात करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. वी विल बी टॉकिंग ऑल्सो अबाउट द मल्टीनेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और इसी किस्म के हमारे डाइवर्स किस्म के टॉपिक्स हैं जो उसके अंदर करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेजिंग, कि हम अपने फर्म के रिस्क को किस तरह से हेज कर सकते हैं व्हेन एवर वी आर ऑपरेटिंग इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट. तो स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत वेरिड हैं. जो मेरा लेक्चर मेथोडोलॉजी होगा वो ये होगा कि आई विल बी delivering you all the material through slides. कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आपको उसके अंदर कुछ लाइव जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको कोट करती रहूँ, विच आई वुड प्रेफर कि मैं आपको बुक से देख के बताऊँ कि दीज आर दी लाइव एग्जांपल्स. कुछ हम न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज भी इसके अंदर करेंगे विच आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू, ताकि आपको नो हाउ हो कि आपने प्रैक्टिकली उसको किस तरह से हैंडल करना है. यू विल बी आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी familiar with the different sort of different sort of terminologies that the multinational business financial managers they might operate. So the complexity of the international financial management is much more as compared to what the domestic financial management is all about. So dear students, हम इस कोर्स को शुरू करेंगे. I hope and I pray that you are going to enjoy this course. आपको इस कोर्स को पढ़ के बहुत आपको अच्छा लगे, आपकी नॉलेज enhancement हो, or definitely there is going to be value addition after doing this course. So dear students, let's start. First of all, this is the chapter आज जो हम पढ़ेंगे, that is all about the introduction of the this multinational financial management. हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं. Number 1 is to identify the main goal of the multinational corporation and potential conflicts with the goal. जब भी हम कोर्स शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि गोल्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के. तो यहाँ पे हमारे जितने भी गोल्स होंगे दे आर basically focused towards the multinational corporations and the potential conflicts with those goals, to describe the key theories that justify international business, and to explain some common methods used to conduct international business. So first of all, starting with the goal of MNC. Okay, before we start it, एक छोटा सा पैरा मैं आपके लिए पढ़ूंगी. वो ये है: The commonly stated goal of a firm is to maximize its value and thereby maximize shareholders' wealth. The goal is applicable not only to the firms that focus on domestic business but also to the firms that focus on international business. जब हम multinational business की बात कर रहे हैं तो we are talking about the goals of the MNCs or goals of the multinational firms. In fact, many firms have expanded their international business as a mean of enhancing their value. जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन एनहांस होता जा रहा है तो बिजनेसेस जो है वो ये चाहते हैं दैट they want to maximize their value. Since foreign markets can be distinctly different from the local markets, they create opportunities for improving the firm's cash flow. जब हम मल्टीनेशनल सेटअप की बात करते हैं तो definitely it is going to give us the advantage, or it is going to provide us with the opportunity to use the expanded set of opportunity that the multinational business they do have. जब हम domestic business की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा restricted होता है, या वो थोड़ा सा आप कह लें कि वो focused होता है towards one thing. लेकिन जब हम multinational business की बात करते हैं तो multinational business में firms enter इसलिए होती हैं ताकि अपनी value maximization कर सकें, अपनी investment base बढ़ा सकें, अपनी earnings बढ़ा सकें, अपना market share enhance कर सकें, so on and so forth. They want to enhance on their cash flows, on their value maximization. That is what the purpose is. So many barriers to entry into the foreign markets have been reduced or removed recently. अब foreign market में enter होने के different barriers थे
उन बैरियर्स को बहुत हद तक रिड्यूस किया गया थ्रू डिफरेंट एग्रीमेंट्स, जो मैं आपको ऑन एंड ऑफ बताती रहूँगी, साथ साथ इस चैप्टर में भी और नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगी कि किस तरह से हमने मल्टीनेशनल बिजनेस के जो रास्ते हैं वो हमवार किए हैं। अगर हम उसको आसान ज़बान में कहें, उससे मतलब ये है कि हम किस तरह से वी आर पेविंग द वेज smooth in order to run our international business on a smoother pace, right? So उन हमने बैरियर्स को ठीक किया, thereby encouraging firms to pursue international business. Consequently, many firms have evolved into the multinational corporations, which are defined as firms that engage in some form of international business. MNC वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो सेटअप है या वो फर्म है विच इज़ इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस। एंड व्हाट इज़ द इंटरनेशनल बिजनेस, हाउ टू एंटर इनटू दैट, इसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि हमने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कैसे एंटर होना है, और हम डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे कि हाउ टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस एंड हाउ टू गेट एंटर्ड इनटू दैट इंटरनेशनल बिजनेस. Their managers conduct international financial management, which involves international investing and financing decisions that are intended to enhance the value of MNC. अच्छा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इनफैक्ट तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड तीसरा है एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस. जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करते हैं. मैं रिपीट करती हूँ. नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक्विजिशन डिसीजंस, नंबर 2 इज फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड नंबर 3 इज एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस. तो ये जो 3 एरियाज हैं ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की इन 3 एस्पेक्ट्स को कंपेयर करें विद द इंटरनेशनल बिजनेस और विद द MNC, तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है. यहाँ मैं आपके लिए ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको लिख के बताती हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय दिस. वी आर इन्वॉल्व इन एक्विजिशन विच इज इन्वेस्टमेंट, then we are involved with financing and then we are involved in asset management. Basically these are the 3 areas of financial management. So these are the three areas of financial management, जिसमें है नंबर 1 इज एक्विजिशन विच इज इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट. थ्रू आउट दिस कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. ये आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड इक्विटी साइड है बैलेंस शीट की. दिस इज योर एसेट विच इज योर इन्वेस्टमेंट साइड, राइट. ये आपके लाइबिलिटीज एंड इक्विटी सेक्शन है बैलेंस शीट का, एंड दिस इज द एसेट साइड विच इज द इन्वेस्टमेंट साइड. इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे मैनेज करना है, करंट एसेट्स को कैसे मैनेज करना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंसिंग डिसीजंस में हाउ टू गो अबाउट द करंट लाइबिलिटीज एंड द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मल्टीनेशनल बिजनेस. इन दोनों को करने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को करने के लिए और फाइनेंसिंग डिसीजंस को करने के लिए, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू व्हाट द डोमेस्टिक बिजनेस माइट हैव. मेरी बात समझ रहे हैं? मैं रिपीट करूं, ओके. जब हम बात करते हैं लोकल बिजनेस की या डोमेस्टिक बिजनेस की, तो थिंग्स आर मच मोर सिंपल, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है वो लिमिटेड चॉइस है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं. सिमिलरली फाइनेंसिंग कैसे करनी है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड चॉइस है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल मार्केट, from the point of view of short term financing methods, from the point of view of long term financing methods. लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल फर्म्स की या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व विद द फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज विच आर वेरिड, विच आर वेरी डिफरेंट, या उनके पास ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन. तो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं उनके पास और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, लेकिन साथ साथ रिस्क भी ज़्यादा हैं, बैरियर्स भी ज़्यादा हैं.
अब उनका क्या करना है, दैट इज ऑल व्हाट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीनेशनल बिजनेस। और हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेके चलेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस, what are the different barriers, what are the different risks which are involved, which the multinational firm is basically facing. We are all going to do about this investment and financing decisions. Okay, let's come to the topic, that is about the goal of MNC. Goal of MNC क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? What should be the goal of a firm? Profitability? No, that is not the goal of a firm. Yes, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा दैट गोल ऑफ अ फर्म शुड बी द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब शेयर होल्डर वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन हम क्यों करें, हम प्रॉफिटेबिलिटी क्यों ना करें? क्योंकि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अल्टीमेटली गोइंग टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट? और हमारा फोकस है वैल्यू ऑफ द फर्म। प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी वेन एवर यू आर गोइंग टू अचीव the goal of a firm of the maximization of the shareholders wealth। तो ये वाला हमारा जो ultimate objective है of the firms, जो आपकी value maximization का, वो automatically solve हो जाता है। So the commonly accepted goal of an MNC is to maximize the shareholders wealth। We will focus on MNCs that wholly own their foreign subsidiaries। अब ये होली ओन्ड फॉरेन सब्सिडरीज क्या होती हैं? हमारा सारा फोकस जो होगा वो होगा होली ओन्ड फॉरेन सब्सिडरीज पे। अब फॉरेन सब्सिडरीज क्या होती हैं? सपोज दिस इज द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेड ऑफिस इज बेस्ड इन लेट्स से पाकिस्तान। हमारे कंट्री में उसका हेड ऑफिस है एंड वी हैव बीन ऑपरेटिंग इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। दिस इज कंट्री ए, दिस इज कंट्री बी, दिस इज कंट्री सी। हमने अपनी 3 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस सेटअप्स सेपरेट, अपने बिजनेस सेटअप्स एज अ सेपरेट फर्म हमने ओपन किए हैं। दिस इज कंट्री ए, दिस इज कंट्री बी एंड दिस इज कंट्री सी। एंड दिस इज, और ये जो फर्म है आपका, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, फॉरेन सब्सिडरी है ऑफ दिस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी जहां पे बेस्ड है उसको हम कहेंगे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और throughout this text, throughout this course, I will be using the word parent or the home country। parent country या home country यूज करूंगी, और ये जो आपकी बाकी सब्सिडीज होंगी इनका नाम हम रखेंगे होस्ट कंट्री। ठीक है, जाहिर है ये आपका होम कंट्री है विच इज द पेरेंट, और ये आपके फॉरेन सब्सिडरीज हैं विच इज द होस्ट कंट्री। और ये जो पेरेंट है वो द मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट माइट बी प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग टू दीज होली ओन सब्सिडरीज। और जितनी भी मुश्किलात हैं उनको कैश मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि हमारा एक और एजेंडा है इसी कोर्स का, जो कि मैं आपको थ्रू आफ्टर सम टाइम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट के हवाले से जितने भी मसाइल हैं फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज के, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के, वो पेरेंट होम कंट्री से डिसीजन आपका कहता है। कुछ होली ओन सब्सिडरी से मतलब ये कि कुछ डिसीजंस में जो होली ओन सब्सिडरीज हैं वो अपने आप खुद से डिसीजंस ले सकती हैं। कुछ में ज्यादा डिपेंडेंसी या दैट वेरीज फ्रॉम द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर ऑपरेटिंग। सो द फाइनेंशियल मैनेजर्स throughout the MNC have a single goal of maximizing the value of the entire MNC। सब्सिडरीज आप जितनी जगह पे मर्जी ओपन कर लें, लेकिन थ्रू आउट दी MNC दे हैव द सिंगल गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ एंटायर MNC। हमने ये करना है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करनी है, एंड दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर the goal of our MNC or the goal of the multinational organization। So the financial managers बेशक जितने भी आप सब्सिडरीज ओपन कर लें उसका जो मेन फोकस होगा, जो मेन गोल होगा, दैट इज टूवर्ड्स द सिंगल गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द एंटायर MNC। Now we will talk about some conflicts with the MNC's goal। When a corporation's shareholders differ from its managers, a conflict of goals can exist which is called the agency problem। अच्छा, agency problem को जब हम define करते हैं तो basically that is the conflict between the shareholders and the management। shareholders are the owners and managers are working on their behalf। देखें, फर्म का सेटअप इस तरह होता है या बिजनेस का सेटअप इस तरह होता है
कि शेयर होल्डर्स आपके वो लोग हैं जो ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स कौन लोग होते हैं? मैनेजर्स आर बेसिकली टेकिंग द एक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म। मैनेजर्स आर बेसिकली पेड फॉर दिस सर्विस। मैनेजर्स को आप हायर करते हो और वो आप उनको पे करते हो फॉर दैट वेरी मैटर, जो भी आपने उनको टास्क दिए हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं, दे आर बेसिकली दी ओनर्स एंड दे आर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, और या आप ये कह लेंगे दे हैव हायर्ड मैनेजर्स टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जो मैनेजर्स हैं वो एजेंट्स हैं, राइट? शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स एंड मैनेजर्स आर दी एजेंट्स। एंड मैनेजर्स आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। मैनेजर्स जो हैं या एजेंट्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द जॉब डन। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? दैट इज द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में, ओनर्स और एजेंट्स के दरमियान में या शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। आप सोचेंगे क्यों कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है? क्योंकि देखें, ये ओनर्स हैं, ये इनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। शेयर होल्डर का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म, लेकिन मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव तो उस वक्त पूरा हो जाता है जब आपने उनको पे कर दिया, उनको कंपनसेशन दे दी। हाउ टू मोटिवेट मैनेजर्स टू एक्ट इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स? आपने मैनेजर्स को किस तरह से मोटिवेट करना है कि वो शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें, या शेयर होल्डर्स को क्योंकि ये वरी है कि हो सकता है मैनेजर्स जो हैं वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम ना करें, बिकॉज मैनेजर्स जो हैं वो आप फ्रंट लाइन पे हैं। मैनेजर्स ने ही सारा जितना भी काम है, जितने भी टास्क हैं किसी भी फर्म के फ्रंट एंड के ऊपर, उन्हीं को रहना है। शेयर होल्डर्स का ये काम है कि वो मैनेजर्स को किस तरह से मोटिवेट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर जॉब डन, दैट इज द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो दो चीजें हैं, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमने बात की डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। दिस एजेंसी प्रॉब्लम इट बिकम्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी टॉक अबाउट दी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल बिजनेस के सेटअप के लिहाज से। लेट मी रीड एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल फॉर यू। अ सब्सिडियरी मैनेजर ऑब्टेन्ड फंडिंग फ्रॉम द पेरेंट फर्म टू डेवलप एंड सेल अ न्यू प्रोजेक्ट। रिपीट करती हूँ। अ सब्सिडियरी मैनेजर ऑब्टेन्ड फाइनेंसिंग फ्रॉम द पेरेंट फर्म टू डेवलप एंड सेल अ न्यू प्रोडक्ट। The manager estimated the cost and benefits of the project from the subsidiary's perspective and determined that the project was feasible. अच्छा, मैनेजर ने सब्सिडरी के लिहाज से, उस लोकल इन्वायरमेंट के लिहाज से, उस कंट्री के लिहाज से उसने एवेल्युएट किया प्रोजेक्ट को, एंड ही सेड दैट प्रोजेक्ट वाज फीजिबल। However, the manager neglected to realize that any earning from this project remitted to the parent would be heavily taxed by the host government. लेकिन मैनेजर ने इस बात को निगलेक्ट किया कि जब सब्सिडी अर्निंग्स अपनी कर लेगी तो उन्होंने जो रेमिट बैक करना है पेरेंट को, व्हाट इज द रेमिट बैक टू द पेरेंट्स, कि जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी अर्न किया है, दे आर गोइंग टू गिव इट बैक टू दी होस्ट कंट्री, सॉरी टू दी होम कंट्री। पेरेंट को उन्होंने वापस भेजना है। सब्सिडीज आर योर सब बिजनेसेस, और उनका जितना भी अर्निंग है वो सारा एमएनसी की तरफ जाएगा, दैट इज योर हेडक्वार्टर। तो उसने वो ये भूल गया कि होस्ट गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाएगी जो भी अर्निंग आप रेमिट बैक करना चाहोगे अपने पेरेंट को। The estimated after-tax benefits received by the parent were more than offset by the cost of financing the project, और वो इतने ज्यादा थे कि वो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से भी ज्यादा थे। While the subsidiaries individual value was enhanced, the MNC's overall value was reduced. हालांकि इस प्रोजेक्ट से, जो मैंने आपको एग्जांपल पढ़ के सुनाई है, सब्सिडरी की तो अपनी वैल्यू एनहांसमेंट हो रही थी, लेकिन एमएनसी की ओवरऑल वैल्यू एनहांसमेंट नहीं हो रही थी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दे आर नॉट वेलकम्ड बाय दी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और दी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा फोकस एक होना चाहिए। अगर सब अपनी सब्सिडरी के लिहाज से या सिंगल प्रोजेक्ट्स के लिहाज से एवेल्युएशंस करेंगे या अपनी बिल्ड करेंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीनेशनल फर्म्स, एंड दैट इज अगेन द क्वेश्चन
question mark for them. So the agency costs are normally larger for MNCs than for the purely domestic firms. जैसा कि मैं इससे पहले आपको जिक्र करी थी कि एजेंसी प्रॉब्लम इज बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर्स एंड द शेयर होल्डर्स, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल फर्म की. वाई? बिकॉज द एजेंसी कॉस्ट आर नॉर्मली लार्जर फॉर MNCs देन फॉर द प्योरली डोमेस्टिक फर्म्स. प्योरली डोमेस्टिक फर्म्स से मल्टीनेशनल फर्म्स की एजेंसी कॉस्ट ज़्यादा होती है. वाई द एजेंसी कॉस्ट for a multinational firm is larger, or it is you can say higher as compared to the domestic firms? Because the difficulty in monitoring distant managers. Who are the distant managers? जो आपके subsidiaries में managers हैं, जो आपके different business operations चला रहे हैं, वो आपके मुल्क में नहीं बैठे हुए, वो दूसरे countries में बैठे हैं, और उन दूसरे countries में जो managers बैठे हुए हैं उनको monitor करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यू कैन नॉट गिव देम दी फिजिकल विजिट्स ऑन डेली बेसिस, नहीं जा सकते आप, उनकी मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाती है. ठीक है. अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने कुछ बात आसान कर दी हुई है किसी हद तक, बट स्टिल देयर आर डिफिकल्टीज इन दी मैनेजिंग, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, बिकॉज दे आर स्प्रेड अपार्ट. मल्टीनेशनल बिजनेस की जब भी हम बात करते हैं तो वी आर डीलिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंट्रीज. उन सभी डिफरेंट कंट्रीज में जाना, उनको एक्सेस करना फिजिकल ग्राउंड के ऊपर, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो द डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग दीज डिस्टेंस मैनेजर्स इज वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई द एजेंसी कॉस्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल बिजनेस इज मच मोर एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक बिजनेस. देन इज द डिफरेंट कल्चर्स ऑफ फॉरेन मैनेजर्स. जो फॉरेन मैनेजर्स हैं उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, हर कंट्री का डिफरेंट कल्चर है, और उनके जो वे ऑफ डूइंग वर्क है दैट इज ऑफ कोर्स डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट इन द मिडिल ईस्ट, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद जापान, विद अमेरिका, विद कैनेडा, and with even our country, Pakistan, India, Bangladesh, and Sri Lanka, etc. So different cultures of the foreign managers, they are going to increase the cost of the this agency cost. आपकी बढ़ा देती है. Why? क्योंकि देखें, जो एजेंसी कॉस्ट है वो बहुत इम्पेरेटिव है, और मैनेजर्स के लिए ये, या शेयर होल्डर्स के लिए ये बात बहुत एक खास हद तक तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे आगे नहीं. हम डिफरेंट कल्चर्स को डील कर रहे हैं, वी कैन नॉट अवॉइड इट. जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस की या मल्टीनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, वी कैन नॉट अवॉइड, हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते. वाई? क्योंकि वी आर डीलिंग इन अ सेटअप जहाँ पे हम डिफरेंट लोगों से या डिफरेंट कल्चर्स से मिलते हैं, एंड कल्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर रिलीजन, योर बिलीफ, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, इन सब से मिलके बनता है, और इनको चेंज करना तो ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है. इनको चेंज भी नहीं किया जा सकता, समहाउ थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दी वर्क एनवायरनमेंट. हमने बेसिकली हमने डिफरेंसेस को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना है. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीनेशनल बिजनेस, वी वांट टू सेलिब्रेट ऑल दीज डिफरेंसेस. वी आर फेसिंग these challenges, and then we are going to accept these challenges, and we are going to celebrate these differences. हम इन differences को, जो कि among countries हैं, we want to celebrate it. And how to celebrate it, वो हम किस तरह से करेंगे, different techniques के हवाले से, different financial management के functions के हवाले से, that is the crux of the story of this course. The sheer size of the large MNCs and the tendency to downplay short-term effects. अच्छा, एक तो MNCs के साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक फर्म. अब उस बड़े साइज के उनको बहुत दफ़ा फ़ायदे भी होते हैं एज फार एज द एक्सेस टू द फाइनेंशियल मार्केट्स इज कंसर्न. ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, उनको लोन आसानी से मिल जाता है एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक फर्म्स. दे आर मोर एक्सपोज्ड to certain things which the domestic firms are not. उनको सब्सिडीज मिल जाती हैं एंड many others. लार्ज साइज का उनको बहुत फायदा होता है. लार्ज साइज का फर्म के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है टू एब्जॉर्ब दी सर्टेन एसिमेट्रिक शॉक्स. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लार्ज फर्म के अंदर ज़्यादा गुंजाइश होती है कि कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस राइज होते हैं तो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले. कैसे? कि कोई लेट्स से इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ रहा है थोड़ा बहुत, तो आपकी फर्म का साइज बड़ा है, यू आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, तो एक दूसरे के साथ ऑफसेट हो जाता है. इन्वेस्टमेंट बेस बड़ा है. ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई हेल्दी बॉडी है, तो हेल्दी बॉडी हैज मोर रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी पावर
टूवर्ड्स डिजीज एज कम्पेयर टू सम वीकर पर्सन। तो जो बेचारा कमजोर बंदा होता है वो जल्दी बीमार हो जाता है एज कम्पेयर टू सम हेल्दी पर्सन। तो जो MNC है, जो मल्टीनेशनल फर्म है, जस्ट इमेजिन इट और जस्ट यू कैन से, आप उसको इस तरह से समझें कि वो एक हेल्दी बॉडी है या एक वो लार्ज साइज का setup है which can absorb these all different negative shocks easily। तो स्टूडेंट्स ये है कि आपके जो उसके अंदर उस साइज की वजह से आप जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं उनको डाउन प्ले कर सकते हो बिकॉज ऑफ हैविंग दिस थिंग। सो दिस इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट विद द MNC's goal। Subsidiaries managers may be tempted to make decision that maximize the values of their respective subsidiaries। अच्छा, जब हम सब्सिडरी लेवल की बात करते हैं तो हो सकता है कई दफा सब्सिडरीज के पास कोई ऐसी ऑप्शन आ जाए या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जो वो समझें कि वो उनके लिए बहुत फिजिबल है एट दैट कंट्री लेवल। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो है ना उसके जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है या सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से पेरेंट को इतना फायदा नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल पढ़ के सुनाई थी, हो सकता है वो बहुत फिजिबल हो, लेकिन पेरेंट जो भी आपने कुछ कमाया एट दी सब्सिडरी लेवल, डेफिनेटली आप उसको रेमिट बैक करेंगे टू दी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। रेमिट बैक करने से मतलब यह है कि जो भी अर्निंग्स हैं यू आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट मनी टू दी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसमें पेरेंट का शेयर है, पेरेंट हैज इन्वेस्टेड दैट मनी आउट इनटू दैट फॉरेन सब्सिडरी। लेकिन कई दफा इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लाइक हो सकता है वो सब्सिडरी को लगे कि वो हमारे लिए तो बहुत फिजिबल है एंड वी डू नॉट केयर अबाउट द पेरेंट, तो उस लिहाज से यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है MNCs के गोल में। लेकिन जो हमारी जितनी भी एक्टिविटी है दैट शुड बी दी फोकस्ड टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द MNC, दैट इज द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी दे मस्ट लीड टू द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड नॉट टू द at the subsidiary level, not subsidiary level but the value maximization of the shareholders। अच्छा जी, then we come to the impact of the management control। The magnitude of the agency cost can vary with the management style of the MNC। The magnitude of the agency cost can vary with the management style of the MNC। A centralized management style reduces agency cost, however a decentralized style gives more control to those managers who are closer to the subsidiaries operation and environment। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दो बातें की, दो तरह की environments। नंबर 1 is the centralized management style and number 2 is the decentralized management style। What is centralized and what is decentralized approach? आपने मैनेजमेंट में इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा, दोबारा ब्रीफ करती हूँ और हम देखते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल वो होगा जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन फ्यू हैंड्स and they are going to dictate their orders to rest of all the other subsidiaries or rest of all the other managers to operate on certain lines or to operate in certain areas। Getting my point? Centralized management style का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का जो डिसीजन मेकिंग है या जो अथॉरिटीज हैं दे आर इन फ्यू हैंड्स और आपने उनको उसी तरह से ओबे करना है। जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है that is the best example of the centralized management style, जहाँ पे authority is in few hands and then there is a very long organizational structure जिसके अंदर tall आप कह लें उसको, there is a very tall organizational structure that you have to follow। centralized management के अंदर अब होता ये है आपकी जो decision है that is in few hands, this is the top management, फिर ऐसे मैं आपके लिए एक चेन को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ। सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टॉल स्ट्रक्चर, टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरे हैंड पे एक और मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ।
दिस इज कॉल्ड द फ्लैट स्ट्रक्चर। ये जो आपका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल है दैट इज ऑफ द टॉल स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ तक सिर्फ कन्फाइंड है। यही लोग ऑर्डर करेंगे, यही लोग डिसीजन लेंगे, जिसको ये सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन दिस स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो आपका डिसेंट्रलाइज्ड स्टाइल है उसके अंदर लेट से ये जिसको हमने फ्लैट स्ट्रक्चर कहा, जैसा कि आपको ये नजर भी आ रहा है, ये दिस इज टॉल एंड दिस इज फ्लैट, ये वर्टिकल सा है और ये हॉरिजॉन्टल सा है। इस फ्लैट स्ट्रक्चर में जो आपके मैनेजर्स हैं दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू दी top management, and in their own they have the decision making power as well। वो डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी हद तक अपने साथ कर लेते हैं, और जो थोड़े बहुत डिसीजन रह गए हैं वो आप टॉप मैनेजमेंट के साथ कंसल्टेशन के साथ कर सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल से आपका एजेंसी कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। वाई? क्योंकि एक जो लेवल है वो दूसरे लेवल को रिपोर्ट करेगा, वो उससे ऊपर वाले लेवल को रिपोर्ट करेगा, और अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो फ्यू हैंड्स में है। सो द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो एजेंसी कॉस्ट को कम करने में बहुत हद तक हेल्प करेगी, बहुत हद तक मदद करेगी। However, a decentralized style gives more control to those managers who are closer to the subsidiaries operation and environment। जो डिसेंट्रलाइज्ड स्टाइल है इट गिव्स मोर कंट्रोल टू दोज मैनेजर्स हु आर क्लोजर टू द सब्सिडरी ऑपरेशन एंड एनवायरनमेंट। वो अपने ओन में ज्यादा हद तक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और चूंकि वो ज्यादा हद तक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पे एजेंसी प्रॉब्लम्स ज्यादा राइज हो सकते हैं इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। Now the centralized multinational financial management for an MNC with 2 subsidiaries। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसकी 2 सब्सिडरीज हैं। नंबर 1 इज ए एंड नंबर 2 इज बी। आपको राइट और लेफ्ट पे नजर आ रहा है, कैश मैनेजमेंट एट ए एंड कैश मैनेजमेंट एट बी। अब चूंकि ये सेंट्रलाइज्ड है तो फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑफ अ पेरेंट इज गोइंग टू डू द इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट एट ए and also the inventory and accounts receivable management at organization at the subsidiary B. Similarly, financial managers of parent is responsible for the financing at A subsidiary, and the financial managers of parent is also responsible for financing at B. Then financial managers of parent is responsible for capital expenditures at A, and financial managers of parent is responsible for the capital expenditures at B. So financial managers of parents are basically responsible for the cash management at subsidiary A and at subsidiary B। दोनों subsidiaries के ऊपर cash management के हवाले से financial managers they are responsible। आप देखें decentralized में क्या होगा, स्ट्रक्चर को देखें। decentralized multinational financial management for an MNC with 2 subsidiaries A and B। यहाँ देखें, फाइनेंशियल मैनेजर पेरेंट का नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैश मैनेजमेंट एट ए, फॉर इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट एट ए, फाइनेंसिंग एट ए एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एट ए। यानी उस सब्सिडरी का जो फाइनेंशियल मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ सब्सिडरी ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन। Similarly, financial managers of B is responsible for cash management at B, inventory and accounts receivable management at B, financing at B, and capital expenditures at B. So the financial managers of subsidiary B are responsible for the financial management functions of all the organizations। अच्छा, कंपेयर करते हैं, पिछली स्लाइड पे दोबारा चले जाते हैं ताकि आपको क्लियरिफिकेशन हो जाए। यहाँ देखिए, हमारे पास सिंगल एक फाइनेंशियल मैनेजर था पेरेंट का, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिसको हमने सेंट्रलाइज्ड कह दिया, वो कैश मैनेजमेंट ए से भी उसको भी संभाल रहा है और बी को भी संभाल रहा है। अब यहाँ पे एजेंसी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी क्योंकि एक ही मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सब्सिडरी ए मैनेजमेंट एंड फॉर सब्सिडरी बी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। मैनेजर एक ही मैनेजर है और शेयर होल्डर है, मिनिमम चांसेस। लेकिन जो अप्रोच है दैट इज सेंट्रलाइज्ड। लेकिन एक स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती चलूं कि यहाँ पे थोड़ा सा जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखें, सब्सिडरी बी में जो लोग हैं दे आर बेटर इन अ पोजीशन
to evaluate what is good for them from the point of view of financial management at that subsidiary, क्योंकि वो उस कंट्री के अंदर रहते हैं, वो वहाँ के लोकल्स हैं, मे बी अगर नहीं भी हैं तो दे आर दी पार्ट ऑफ दैट सेटअप, दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू टेल कि उनके लिए क्या बेहतर है उस दैट वेरी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, कस्टमर कैसा है यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसी है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। जो फाइनेंशियल मैनेजर पेरेंट का है वो अपने होम कंट्री में बैठ के इतना अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? तो जैसा कि इट इज कॉमनली सेड कि अगर आप खुद उस सिचुएशन में नहीं हो ना, तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली एनालाइज दैट व्हाट इज गोइंग ऑन या व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद यू। तो आपके लिए ये टू पुट योर सेल्फ इन सम अदर्स शू, यानी अपने आप को अगर उसकी जगह पे रख के सोचेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। सो द पर्सन हु इज एग्जैक्टली एट दैट प्लेस इज बेटर एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट व्हाट ही वांट्स टू हैव। तो जो लोकल्स होंगे उनको ज्यादा पता होगा जो फाइनेंस के एस्पेक्ट से कि उनकी कैश मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या है, उनके इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंसिंग में यहाँ क्या इश्यूज हैं, क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजर होगा, फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द पेरेंट होगा, उसको इतना डेप्थ से पता नहीं होगा, उसको इतनी डिटेल से पता नहीं होगा व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। तो आपने ये देखना है कि सेंट्रलाइज्ड के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा तो ये होगा कि एजेंसी कॉस्ट बहुत कम होगी, क्योंकि यू आर नॉट डीलिंग विद डिफरेंट एंड वेरी टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर्स। आपने खुद ही डिक्टेट कर दिया, जो फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द पेरेंट है वो ही सब कुछ डिसाइड करने वाला है कि सब्सिडी ए में क्या होगा और सब्सिडी बी में क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसको नहीं पता वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, उस डेप्थ से पता होगा वो ज़ाहिर, वो सब चीजें रिसर्च बेस्ड होंगी, सब चीजें मार्केट रिसर्च बेस्ड होंगी और उसकी ओरिएंटेशन बड़ी कैलकुलेटेड होगी। बट स्टिल ही इज नॉट इन अ पोजीशन, वो उतने बेहतर पोजीशन में नहीं है कि वो बता सके कि इसको एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं और उसके क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं। जो लोग वहां पे बैठे हैं उनको ज्यादा पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर विजिट करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि मुझे तो फाइनेंस की हर चीज पता है एंड आई कैन गिव देम अ वेरी स्ट्रांग प्रपोजल टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन। सपोज अब जब मैं वहां जाऊंगी, मुझे नहीं पता, बेशक मेरा अपना नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है। तो जो लोग, जो एम्प्लॉइज, जो स्टाफ मेंबर्स वहां पे काम कर रहे हैं, दे आर इन अ बेटर पोजीशन। तो सेंट्रलाइज का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको इन डेप्थ चीजों का पता नहीं होता एंड यू आर जस्ट गोइंग टू implement all those and impose all those policies and rules on those people। लेकिन उसका फायदा हमें ये हो रहा है कि हमारी एजेंसी कॉस्ट जो है वो खासी हद तक कम हो गई है। दूसरी पिक्चर में देखें, यहाँ पे फायदा ये हो रहा है कि सब्सिडरीज के सेपरेट फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, दे आर इन अ पोजीशन टू बेटर अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर कंट्री, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड रेस्ट ऑफ द ऑल द अदर्स। तो उस हवाले से इन मैनेजर्स का जो स्ट्रेंथ है दैट इज मच मोर एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ पेरेंट। लेकिन यहाँ पे जो हमें ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है डिसेंट्रलाइज्ड का, कि उसके अंदर हमारी एजेंसी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं, हमारी एजेंसी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस, बिकॉज ऑफ ऑल दीज, जहाँ पे हम इनको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं इन डिफरेंट एरियाज, हमने उनको इंडिपेंडेंस दे दी इन दी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारे उस लिहाज से हमारा जो है ना उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट वो कम होगी एंड दे आर बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन अपने अपने एरियाज में। जब इंडिपेंडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो एमएनसी का जो कॉमन फोकस्ड गोल है शायद उसकी तरफ जो तवज्जो है या जो उस तरफ रुझान है वो कंपैरेटिवली कम हो जाए। तो जो मैंने आपको एग्जांपल भी बताई इससे पहले, थोड़ी देर पहले, तो हो सकता है सब्सिडरी अपने ही पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू कर दे कि उनके लिए क्या प्रॉफिटेबल है या उनके लिए क्या बेहतर है। सो दीज आर बेसिकली द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट मे अराइज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल। टू सम इट अप, अभी तक हमने जो कुछ किया, वी वर टॉकिंग अबाउट द गोल ऑफ अ फर्म, देन वी टॉक्ड अबाउट द two styles of the management, that is the centralized management style and the decentralized management style। decentralized management style में decisions आपके एक कुछ हाथों में नहीं होते and you are on their own जब हम subsidiaries की बात करते हैं for making certain decision। centralized में the decision making power is restricted in few hands और उसमें agency cost आपकी कम होती है। let me read out an interesting example for you।
The parent of Jersey Incorporation has subsidiaries in Australia and Italy. Jersey Incorporation एक फर्म है जिसके ऑस्ट्रेलिया और इटली के अंदर सब्सिडीज हैं. The subsidiaries are in different time zones. अब इन सब्सिडीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इटली का टाइम जोन बहुत डिफरेंट है टाइमिंग्स के लिहाज से. सो कम्युनिकेटिंग फ्रिक्वेंटली बाय फोन इज इनकन्वीनियंट एंड एक्सपेंसिव. इसलिए फोन के थ्रू आप बार बार कम्युनिकेट नहीं कर सकते. इट बिकम्स मच मोर एक्सपेंसिव. In addition, financial reports and designs of new products or plant sites cannot be easily communicated over the phone. The internet allows the foreign subsidiaries to email updated information in a standardized format to avoid language problems and to send images of the financial reports and product design. अब देखें लैंग्वेज का इशू भी है. जब हम मल्टीनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, कल्चर के इशू भी हमने बात की. कल्चर के अंदर ये जो एक पोर्शन है, पार्ट है, वो लैंग्वेज है. लैंग्वेज इज अ बिग इशू. कुछ कंट्रीज के अंदर तो सिर्फ नेटिव लैंग्वेजेस ही यूज हो रही हैं. और जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल सुनाऊं, आई हैव अ चांस टू विजिट मलेशिया. तो वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स जिन रिसर्चर्स से हमारी बात हुई, दे वर डूइंग देयर रिसर्च इन मलेशियन लैंग्वेज. कैन यू इमेजिन? अपनी ही लैंग्वेज के अंदर उन्होंने रिसर्च की थी. एंड इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज यू कैन फाइंड आउट रिसर्च पेपर्स इन देयर ओन वेरी नेटिव लैंग्वेज. हमारे यहाँ जो रिसर्च का ज्यादा कॉन्सेप्ट है, वी आर डूइंग इट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. हम अपने मतलब ज्यादा जो भी हमारी सोशल साइंसेज के हवाले से जितनी भी रिसर्च है, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में ही, हम उसको ज्यादा यूजली करते हैं. लेकिन नेटिव में ही आपने जितनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है, आपने एनुअल रिपोर्ट्स बनानी है, आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज में बनाई होगी जो आपको समझ आती है. अब उनको उनके इमेजेस कैसे सेंड करने हैं और उसको कैसे रिपोर्ट करना है, वो दूसरी जो कंट्री है या जो होम कंट्री है, हो सकता है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल ही ना हो. ठीक है ना. द पेरेंट कैन इजीली ट्रैक इन्वेंट्री, सेल्स, एक्सपेंसेस एंड अर्निंग्स ऑफ ईच सब्सिडरी ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस. दस द यूज ऑफ इंटरनेट कैन रिड्यूस एजेंसी कॉस्ट ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बड़ा हमें फायदा दिया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से वी कैन सेंड इमेजेस, वी कैन सेंड रिपोर्ट्स. आईटी की मदद से सॉफ्टवेयर्स ऐसे आ गए हैं जो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके अंदर हम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में सारी अपनी चीजें रिपोर्ट कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो लैंग्वेज के इश्यूज, टाइम जोन्स के इश्यूज काफी हद तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से रिजॉल्व हो गए हैं, एंड विच हैज सेव्ड द एजेंसी कॉस्ट एज वेल. सो दिस इज द एग्जांपल. नाउ मूविंग ऑन. Some MNCs attempt to strike a balance. They allow subsidiary managers to make the key decisions for their respective operations, but the parents management monitor the decision. अच्छा, कुछ MNCs ने ये एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ कि किसी हद तक वो सब्सिडरीज को अलाउ कर देते हैं फॉर मेकिंग डिसीजंस, और फिर जहाँ पे वो समझते हैं कि टॉप मैनेजमेंट का या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल होना चाहिए, वहाँ पे वो इंटरवीन कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मॉनिटर द डिसीजंस. लाइक पेरेंट का काम इतना रह जाएगा मॉनिटरिंग वाला, लाइक जहाँ पे वो समझेंगे लूज एंड है, या जहाँ पे समझेंगे हमारी फॉर्मल अप्रूवल या उसकी जरूरत है, तो दे विल इंटरवीन. अदरवाइज सब्सिडरीज को इतना इख्तियार दे दें कि वो अपनी उसके एरिया के अंदर रहते हुए, अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपने कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए वो अपने डिसीजंस कर सकें. एंड दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी इन अ वे कि इट इज गोइंग टू गिव यू अ बैलेंस बिटवीन व्हाट इज गोइंग ऑन. सब्सिडरी वाला भी वो आ जाएगा कि आपने लोकल अपने एम्प्लॉइज और स्टाफ्स को इन्वॉल्व कर लिया है और सारा कुछ, और साथ साथ पेरेंट वाला भी पर्सपेक्टिव आ जाएगा और गोल ऑफ अ फर्म वाला पर्सपेक्टिव भी आ जाएगा कि हम उस चीज को भी साथ लेके चल रहे हैं. तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ बैलेंस. इट इज गोइंग टू गिव यू अ बैलेंस दैट अलाउज द सब्सिडरी मैनेजर्स टू मेक द की डिसीजंस फॉर देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस, बट दी और पेरेंट मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ इंटरवीन करेगी फॉर मॉनिटरिंग द डिसीजंस. सो दैट इज इन फैक्ट a very good strategy. Today, electronic networks make it easier for the parent to monitor the actions and performance of its foreign subsidiary. तो students, information technology के advent से बड़ा फायदा हुआ है कि they are now in a position to monitor the actions and performance of the foreign subsidiary. Parent organization में जो बैठे managers हैं, they can easily see the or monitor the operations and actions and performance of their foreign subsidiaries. So this is one of the good examples. Various forms of corporate control can reduce agency cost. अब हम बात करेंगे कि what are the different corporate controls.
कॉर्पोरेट कंट्रोल्स के हवाले से क्या क्या एक्शंस हम ले सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एजेंसी कॉस्ट, एंड व्हाट आर दोज? नंबर 1 इज स्टॉक ऑप्शंस, नंबर 2 इज hostile takeover threats, number 3 is investor monitoring. Okay, let me explain all of these जो आपकी एक्शंस हैं in detail. These are various forms of corporate controls. नंबर जिसके अंदर है सबसे पहला है stock options. One form of the corporate control that can be used by the multinational corporation is to partially compensate the board members and executives with stocks. अगर आपने बोर्ड मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव्स को स्टॉक ऑप्शन दे दें, यानी फर्म के जो स्टॉक्स हैं उसमें उनको ऑप्शन दे दें कि दे कैन बाय द स्टॉक्स ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजर्स दे विल ऑटोमेटिकली बिकम द ओनर. हम तो ये बात कर रहे थे कि मैनेजर्स है वो सैलरी पे काम कर रहा है, तो वो क्यों इंटरेस्टेड होगा? जब उसको पे अपनी पूरी मिल रही है तो वो क्यों इंटरेस्टेड होगा फॉर द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन? तो स्टॉक ऑप्शन की मदद से ये किया जा सकता है कि मैनेजर्स को आप इन्वॉल्व कर लें इनटू द फर्म्स डिसीजन मेकिंग. कैसे? अगर मैनेजर के अपने स्टेक्स लगे होंगे, उसका अपना पैसा लगा होगा, उसने खुद से शेयर्स ऑफ स्टॉक ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन परचेज किए हुए हैं, तो देन द मैनेजर इज गोइंग टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. तो दिस इज अ वेरी गुड वे. आप जैसे ये कह लें कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी जगह पे एम्प्लॉई हूँ, काम कर रही हूँ या मैनेजर हूँ, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां पे, तो आई विल नॉट बी बॉदर्ड. मैं कहूंगी मुझे क्या जरूरत पड़ी है, बस मैंने अपना काम किया, मुझे अपनी पे मिली एंड दैट्स इट. लेकिन अगर मैं उसकी ओनर भी हूं, लाइक अगर हो सकता है मैंने पार्टनरशिप की हुई है या मेरी उसके अंदर शेयर्स ऑफ स्टॉक्स हैं, वो फर्म है, उसके मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो देन आई विल बी बॉदर्ड एंड आई विल बी मोर कॉन्शियस. दैट इज व्हाट द स्टॉक ऑप्शन इज. स्टॉक ऑप्शन की मदद से आप मैनेजर को कुछ ओनरशिप दे देते हैं in the share of stock, और इस तरह से they will be the part of that very particular organization and they will be interested to work. So which will encourage them to make decision that maximize the MNC stock price. तो उनका हर एक्शन उस वक्त जो है ना वो leading towards the value maximization of the stock price होगा. However, this strategy may effectively control only decisions by the managers and board members who receive stock as compensations. In addition, some managers may still make decisions that conflict with the MNC's goal if they expect that their decision will have a little impact on the stock price. लेकिन उसमें भी मतलब किसी हद तक तो आप कह सकते हैं कि वो शायद फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, लेकिन ऐसे डिसीजन जिससे स्टॉक प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगेन दे विल नॉट बॉदर. मैनेजर्स को थोड़ा सा वो अपना उसमें आप कह लेंगे उनकी अपनी इंटेंशन उसके अंदर शामिल हो सकती है. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ. जाहिर है देखें, ह्यूमन बींग्स के साथ आप काम करें तो ह्यूमन इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी केस. तो आप किसी हद तक तो उन पे रिलाई कर सकते हो कि अगर आपने उनको शेयर ऑफ स्टॉक में भी हिस्सा दे दिया एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, बट यू कैन नॉट गेट द गारंटी, 100% गारंटी आपको नहीं मिल सकती फिर भी कि दे आर ऑलवेज गोइंग टू डू देयर बेस्ट फॉर द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म. थोड़ा सा लूज एंड फिर भी देना पड़ेगा मैनेजर्स को, ये हमारी मजबूरी है. नंबर 2 इज हॉस्टाइल टेक ओवर. हॉस्टाइल टेक ओवर थ्रेट का मतलब ये है, the second form of corporate control is that the threat of hostile takeover if the MNC is insufficiently managed. अगर MNC अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो रही तो उसको hostile takeover का खतरा है. In theory, this threat is supposed to encourage managers to make decisions that enhance the MNC's value. अच्छा, जब इस तरह का खतरा होगा तो मैनेजर्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे. उसकी रीजन ये है कि मैनेजर्स दे वांट टू सेव ऑन देयर standing on their jobs, on their value, since other type of decisions would cause the MNC stock prices to decline. तो ये एक hostile takeover threat की वजह से जो managers हैं they can be put on the right path, उनको ठीक रास्ते पे लगाया जा सकता है. Then is the investor monitoring. A third form of corporate control is investor monitoring by large shareholders. US-based MNCs are commonly monitored by the mutual funds and pension fund because a large proportion of their outstanding shares are held by these institutions. अच्छा, इन्वेस्टर मॉनिटरिंग का मतलब है जो आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें आपके पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स हैं, वो ये है कि जो लार्ज शेयर होल्डर्स हैं वो आपके दे आर बेसिकली बीइंग कॉमनली मॉनिटर्ड बाय दीज म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं. तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने हवाले से भी देखेंगे कि उनको क्या फायदा हो रहा है या उनके क्या
उनको क्या बेनिफिट्स ड्रॉ हो रहे हैं आउट ऑफ ऑल दिस अरेंजमेंट. सो दिस इज अनदर form of a corporate control that may be very, very practical. Then is the constraints interfering with the MNC's goal. MNC's managers are confronted with various constraints. MNC's को क्या constraints हैं which are basically interfering with the MNC's goal. जो मल्टीनेशनल फर्म के मैनेजर्स हैं they are confronted with various constraints. उनको किन किन मुश्किलात का सामना है. Number 1 is the environmental constraints and number 2 is the regulatory constraints. जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स का सामना है, उनको डिफरेंट लिमिटेशंस हैं आप ये कह लें, या उनको आप ये समझ लें कि डिफरेंट मुश्किलात का सामना है विद द पर्सपेक्टिव के दे आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. जब हम डोमेस्टिक फर्म्स की बात करते हैं तो उन मैनेजर्स को ये वाली चीज़ों का सामना नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट से मतलब ये है कि ईच कंट्री इन्फोर्सेस इट्स ओन एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स. सम कंट्रीज में इन्फोर्स मोर ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ सब्सिडरी हुज पेरेंट इज बेस्ड इन डिफरेंट कंट्री. बिल्डिंग कोड्स, डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्शन वेस्ट मटेरियल एंड पोल्यूशन कंट्रोल आर द एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. मतलब आपने जो प्रोडक्शन वेस्ट है उसको कहाँ पे और किस तरह से आपने उसको डिकम्पोज करवाना है, वो एक बहुत बड़ा इशू है. पोल्यूशन वाले मैटर्स हैं और इसी किस्म की चीज़ें. कुछ जगह के ऊपर इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं. लाइक रूल्स सेट रूल्स हैं स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज. आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते. स्पेशल कोड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. तो क्योंकि देखें जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी मस्ट कंसिडर. और आपको पता है कि इन्वायरमेंट जो है वो डे बाय डे पोल्यूट होती जा रही है और ख़राब होती जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फिनोमिना. तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसे एक्शंस लें जिससे हमारी इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रहे. और हमारी इन्वायरमेंट सेफ उस तरह से रह सकती है जब हम इन सारे रेस्ट्रिक्शंस जो फेस हो रही हैं अब उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें. जब हम एज अ बिजनेसमैन किसी दूसरे कंट्री में एंटर होंगे तो वी हैव टू फॉलो ऑल दीज इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स. एंड स्पेशली जैसे जैसे अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है, जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा होता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है एंड वी आर बिकमिंग मोर अवेयर. इस चैलेंज को फेस करना सभी फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए बहुत बड़ा स्टेप है. तो हम इस चीज़ को देखते हुए भी, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए भी हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे. देन इज द रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट. ईच कंट्री ऑल्सो इन्फोर्सेज इट्स ओन रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स परटेनिंग टू टैक्सेस. टैक्सेस के हवाले से, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के हवाले से, अर्निंग्स रेमिटेंस. अर्निंग्स रेमिटेंस से मतलब है कि आप जो कुछ भी उस सब्सिडी के अंदर अर्न करेंगे यू आर गोइंग टू रेमिट बैक दोज अर्निंग्स टू द पेरेंट, या पोर्शन ऑफ. अब कितना पोर्शन आप उसका रेमिट बैक कर सकते हो, कितना पोर्शन आपने री इन्वेस्ट करना है उसी कंट्री के अंदर जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की है. तो दीज आर ऑल दी रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स. एम्प्लॉय राइट्स डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट होंगे एंड अदर पॉलिसीज दैट कैन अफेक्ट कैश फ्लोज ऑफ द सब्सिडरी एस्टेब्लिश देयर. जिसकी वजह से आपके कैश फ्लोज जो हैं वो लार्जली इफेक्ट हो रहे हैं. कैश फ्लोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी आर फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि हमने सभी से ज्यादा जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप समझ लें कि चैलेंज है दैट इज द कैश फ्लोज. तो हमने कैश फ्लोज को बड़े ध्यान से देखना है. फाइनेंशियल मैनेजर्स मस्ट कंसिडर देम व्हेन असेसिंग दीज पॉलिसीज. और फाइनेंशियल मैनेजर्स को देखना पड़ेगा while they are assessing these policies. Also, any change in these regulations may require revision of the existing financial policies. तो किसी भी किस्म की चेंजेस जो हैं वो उसमें फाइनेंशियल पॉलिसीज को रिवाइज करने में हेल्प करेंगी. सो फाइनेंशियल मैनेजर्स मस्ट मॉनिटर द रेगुलेशन ऑफ एनी पोटेंशियल चेंजेस ओवर टाइम. तो उनको साथ साथ ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं एंड हाउ टू फॉलो देम. नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. Urenza, a manufacturing firm in Eastern Europe, is struggling financially. The firm's stock price has declined in the last 2 years as its sales have declined while its expenses remain very high. थोड़ा सा financial crunch है उसके ऊपर, expenses ज़्यादा हैं, sales कम है. One problem is that many of its employees are unproductive. एक जो बड़ा मसला वो ये है कि उसके जो employees हैं they are unproductive. Urenza would like to lay off some of these employees. अब वो ये चाहती है कि कुछ एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दे.
a move that would reduce its expenses and increase earnings, जिसकी वजह से उसके कुछ expenses कम हो जाएं और उसकी अर्निंग ज्यादा हो जाएंगी. लाइक जो अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉइज हैं वो चाहती है कि उसको ले ऑफ कर दें, हटा दें. इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वुड बी बेटर ऑफ इफ द एम्प्लॉइज आर लेड ऑफ. जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे जब आप ले ऑफ कराएंगे. येट द गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ यूरेंजा टू ले ऑफ एम्प्लॉइज. लेकिन गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो एम्प्लॉइज को ले ऑफ नहीं करने दे रही, या उनकी पॉलिसी है कि आप एम्प्लॉय को इस तरह से ले ऑफ नहीं कर सकते इवन इफ दे आर नॉट प्रोडक्टिव. अब उनका लॉ ये है कि जो यूरेंजा फर्म है उसका अपना ये लॉ है कि आप उन एम्प्लॉइज को ले ऑफ नहीं कर सकते. येट द गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ. सो द गवर्नमेंट इज कंसर्न दैट सच एन कंप्लीट फोकस ऑन द शेयर होल्डर वेल्थ बी डेट्रीमेंटल टू दी लेबर फोर्स. तो गवर्नमेंट का यह ख्याल है कि अगर हम इतना शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेंगे तो हमारी लेबर फोर्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी नेगेटिव. तो सर्टेन एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स आर देयर which the MNCs manages they have to face. Then are certain ethical constraints. What are the ethical constraints? There is no consensus standard of business conduct that applies to all countries. अब जो ethical constraints हैं वो different हैं from one country to another, even from one individual to the other. जो ethics हैं जो आपने अपने लिए what is right and what is wrong वो आपने अपने लिए खुद से बनाया होता है, हर इंडिविजुअल ने भी, इवन तो हर कंट्री ने भी बनाया होता है, हर मल्टीनेशनल फर्म ने भी बनाया होता है. तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये कैन नॉट बी फॉलोड एट ऑल टू ऑल द कंट्रीज. हर कंट्री के ऊपर फॉलो नहीं कर हो सकते. वैसे तो सभी के डिफरेंट होते हैं लेकिन ये कि किसी हद तक कॉमन भी होते हैं. जैसे एक कंट्री के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं दे आर गोइंग टू बी सिमिलर ऑन सर्टेन ग्राउंड्स ऑन अ सर्टेन ग्राउंड्स, किसी हद तक सिमिलर भी होते हैं. So a business practice that is perceived to be unethical in one country may be totally ethical in the other. किसी एक कंट्री में जिस प्रैक्टिस को आप अनएथिकल समझ रहे हैं वो दूसरी कंट्री में हो सकता है एथिकल हो. एथिकल मीन्स द डूज एंड डोंट्स. what are the do's and what are the don'ts in accordance to जिसको आप ठीक समझते हैं और जिसको आप गलत समझते हैं. For example, US based MNCs are well aware that certain business practices that are accepted in some less developed country would be illegal in the United States. जैसे bribes to government in order to receive special tax breaks or other favors are common in some countries. bribe करना या taxes के लिए या कोई बड़ा project win करने के लिए कुछ actions को लेना that is quite common in certain other countries. लेकिन कुछ countries के अंदर ये चीजें अनएथिकल समझी जाती हैं. अब जिन कंट्रीज के अंदर ये अनएथिकल समझी जाती हैं और किन कंट्रीज के अंदर ये एथिकल समझी जाती हैं, आपने उनके दरमियान में एक बड़ी ही थिन लाइन ड्रॉ करनी है कि दिस इज अनएथिकल एंड दिस इज एथिकल, एंड देन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दोज वेरी एस्पेक्ट्स कि आपके लिए क्या ठीक है और आपके लिए क्या गलत है. सो these are the different constraints that are very very important from that very aspect. A recent study found that investors assigned a higher value to firms that exhibit high corporate governance standard and are likely to obey ethical standard. तो जिन फर्म्स के अंदर ethical standards follow हो रहे हैं उसका मतलब या आप ये समझ कि जिसके अंदर corporate governance practices ज्यादा बेहतर हैं, they are going to follow the better ethical standards as compared to the others. Now we come to the theories of international business. Why are firms motivated to expand their business internationally? Number one is the first is the theory of competitive advantage. Specialization by countries can increase the production efficiency. This is the competitive advantage. एक country से दूसरे country के अंदर जो उसकी speciality है उसको enhance करने के लिए we use this theory of comparative advantage. Then is the imperfect market theories. The market for the various resources used in the production are imperfect. इस perfection का advantage लेते हुए we can do this जो type of हमारा theories of international business है for doing the international business, it motivates us to do the international business that the markets for the various resources used in the production are imperfect. अगर कोई एक country जो है वो किसी एक चीज के अंदर उसकी प्रोडक्शन में अच्छा तो दूसरा कंट्री दूसरे में अच्छा होगा, तो यू कैन डू दिस इंटरनेशनल बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट इम्परफेक्शन. एक जो जिसमें परफेक्ट है वो अपना एडवांटेज दूसरे को देना चाह रहा है. देन इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी.
As a firm matures, it may recognize additional opportunities outside its home country. अच्छा, अब ये होता है कई दफा कि अपने होम कंट्री के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो मेच्योरिटी तक पहुंच गया। अब आप उस मेच्योरिटी को कितना भी प्रोलॉन्ग कर लें, आखिर में वो डिक्लाइन पे आएगा ही आएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आप उसके लिए फिर न्यू मार्केट एक्सप्लोर कर लें, कोई नया होम कंट्री एक्सप्लोर कर लें, जहां पे आप जाके उसको नए सिरे से नए तरीके से उसकी मार्केटिंग करें, एंड यू वांट टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस इंटरनेशनल बिजनेस, या आप ये कह लें कि प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी के लिहाज से, प्रोडक्ट साइकिल लाइफ साइकिल के लिहाज से मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए, इट इज फॉलोड बाय दिस, ये एक आपका कर्व होता है विथ टाइम। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन स्टेज, दिस इज कॉल्ड growth stage, this is called maturity stage, and this is called decline stage. अब ये जो आपकी मेच्योरिटी, अब जब आपका प्रोडक्ट शुरू में होता है इंट्रोडक्शन में, ये आपके प्रॉफिट्स की, ये आपके प्रॉफिट्स हैं। आपके प्रॉफिट्स शुरू में इतने नहीं होते, दे वेंट अप, शुरू में स्टार्ट जब होता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, until you reach to the growth stage, that is the second stage, आपके प्रॉफिट्स जनरेट होना शुरू होते हैं, and they come at its maximum at the maturity level. अब इस मेच्योरिटी लेवल को किसी हद तक तो आप डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लाइक दिस, ये जो मैं आपको डॉटेड लाइन दिखा रही हूँ। मेच्योरिटी को आप किसी हद तक कर सकते हैं, लाइक आप यू कैन रीप द प्रॉफिट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट्स आउट ऑफ योर प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च की हुई थी, लेकिन एक खास टाइम तक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन की तरफ आ जाएगा। अब ये जो आपका प्रोडक्ट मेच्योरिटी की तरफ आ रहा है ना, आप इसको एक नए साइकिल में डाल दें। कैसे? नए साइकिल में इन सम अदर कंट्री, लेट्स से सब्सिडरी ओपन कर लें कंट्री ए में, और एक और में डाल दें सब्सिडरी बी में, सो दैट यू कैन रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी आउट ऑफ दैट। सो दिस इज अनदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की भी वजह से भी हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होते हैं, एंड दैट गिव्स अस द मोटिवेशन व्हाई द फर्म्स आर मोटिवेटेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इंटरनेशनली इन ऑर्डर टू you can say extend the product life cycle of their particular product. So the international product life cycle, number one, the firm creates product to accommodate local demand. Firms export product to accommodate foreign local demand. पहले local demand को पूरा करें, फिर उसको export करना शुरू करें. Then firm establishes foreign subsidiaries to establish presence in the foreign country and possibly to reduce cost. तीसरे स्टेप में हमने फॉरेन सब्सिडी भी ओपन कर ली और टू एस्टैब्लिश द प्रेजेंस इन द फॉरेन कंट्री एंड पॉसिबली टू रिड्यूस द कॉस्ट, ताकि हम अपनी कॉस्ट भी बचा लें। उसके बाद क्या हो सकता है कि फर्म डिफरेंशिएट्स प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपेटिटर्स और एक्सपैंड प्रोडक्ट लाइन इन द फॉरेन कंट्री। वहीं पे आप अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन शुरू कर दें और उसको फर्दर इंटेंसिफाई करना शुरू कर दें, एंड द फर्म्स फॉरेन बिजनेस डिक्लाइन एज इट्स कंपेटिटिव एडवांटेजेस आर एलिमिनेटेड। या तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, फॉरेन सब्सिडी जब बना लिया तो आप उसको डिफरेंशिएट करें, कंपटीशन में आके उसको विन करें, या फिर ये कि आप डिक्लाइन कर लें। अगर आपने अपना कंपैरेटिव एडवांटेज मीट ना किया तो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे मल्टीनेशनल सेटअप के अंदर बीइंग कंपेटिटिव इज मच डिफिकल्ट और मच मोर चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू बीइंग अलोन। अगर आप डोमेस्टिक फर्म में कंपटीशन की बात करते हैं तो ये वाला जो कंपटीशन है ये आपके लिए और भी ज्यादा टफ होता है। So dear students, this was all about today's lecture. We will be talking about more complex nature of entering into the international business, how to enter into the international business, what are the different modes in the next lecture. Thank you very much for your patience, for listening to me. See you next time. Allah Hafiz.